مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں میں آج اردو بائبل بیتل منسٹری کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خداوند نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم خدا کے کلام کو پھیلا سکیں، خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ بانٹ سکیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہوتی ہے اور ہمیشہ میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں کہ جب میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اب خداوند ہمیں ہر منگل کو جو ہے وہ یہ موقع بخشتا ہے، یہ فضل بخشتا ہے، کیونکہ اس کے فضل کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم خداوند کے فضل کے لیے شکر کرتے ہیں کہ وہ ہر ہفتہ یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے نام کا بیان کر سکیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بہت ہی خاص ہے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ویسے تو ابتدائی تعلیم کے لیے ہے، یعنی کہ نجات کا ٹاپک، یعنی کہ سیلویشن جو ہے، آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے، لیکن آج ہم اس کو بہت ہی گہرے طور سے خدا کے پاک روح کی مدد سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم سیلویشن کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں، یا نجات کے حقیقی معنی ہماری زندگی میں کیا ہیں۔ تو ہم خداوند اس کلام کو شروع کرنے سے پہلے ہم دعا سے اس کا آغاز کریں گے۔ ہاللویا۔ خداوند قدوس زندہ آسمانی باپ، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے خداوند، جس کا آغاز ہم تیرے نام سے کرتے ہیں خداوند۔ آج کے کلام کو برکت بخشنا خداوند، میں اپنے منہ کو، اپنے الفاظوں کو خداوند تیرے تابع کرتا ہوں خداوند۔ آج جو کلام بولا جائے خداوند وہ تیری طرف سے ہو، بولنے والے ہم نہیں خداوند بلکہ تیرا روح ہو خداوند، اور سننے والے لوگ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے برکت کو پائیں خداوند۔ ہم مکاشفہ کے روح کو مانگتے ہیں خداوند، تاکہ ہم تیرے کلام کے بھیدوں کو جان سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نجات کے بارے میں ہے، یعنی کہ انگلش میں سیلویشن، کہ نجات کیا ہے۔ کچھ سوال ہیں جو ہمیشہ اس حوالہ سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ نجات کیا ہے، یا کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نجات کو پورے طور سے اپنی زندگی میں نہیں لیتے، بلکہ ہم اس سے آگے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ غلط سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نجات یافتہ ہیں، یا ہم نجات پا چکے ہوئے ہیں، یا اب ہمیں نجات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ انہی حوالوں کے لحاظ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو، جو ہم مسیحی ہیں یا جو غیر مسیحی ہیں، سب کو نجات کی ضرورت ہے۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ سوال یہ ہے کہ نجات کیا ہے۔ تو میرے ساتھ پہلا حوالہ آج کا دیکھیں، رومیو کا خط اس کا 3 باب اس کے 24 سے 25 آیت۔ رومیو کا خط 3 باب اس کے 24 سے 25 آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے دیکھا کہ جو نجات کے معنی ہیں، نجات کے معنی ہیں فضل کے۔ نجات خداوند کا فضل ہے، نجات خداوند کا رحم ہے، جو سارے انسانوں پر ہوا، اور وہ انسان جو گناہ میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے اور ان کے لیے مخلصی کا کوئی راستہ نہیں تھا، ان کے لیے چھٹکارا کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو خدا باپ نے اپنے منصوبہ کے مطابق اپنے بیٹے کو بھیجا، اور اس کے خون بہانے کے باعث اسے ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو میری اور آپ کی راست بازی گنا گیا۔ تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کا وہ فضل ظاہر ہوا، جسے ہم نجات کے طور پر اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں، اور ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے۔
किसी और जरिया से हम निजात को हासिल नहीं करते, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह के कफारा देने से, यीशु मसीह के छुटकारा से, यीशु मसीह के मखलसी से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, हम निजात याफ्ता कहलाते हैं। अब दूसरा सवाल जो अक्सर जहन में आता है कि क्यों मसीहियों के लिए निजात जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मसीह खानदान में पैदा होते हैं तो हमारे लिए निजात जरूरी नहीं है। हमारे लिए निजात बहुत जरूरी है। हमारे लिए निजात उतनी ही जरूरी है जितनी निजात दूसरी कौमों के लिए या गैर कौम के लिए जरूरी है। तो मेरे साथ इसी हवाला में से देखिए रोमियो का खत, उसका 3 बाब, उसकी 23 आयत के क्यों खुदा को ये मंसूबा तरतीब देना पड़ा कि वो निजात को हमारी जिंदगियों में जारी करता, वो अपने बेटे को भेजता कि वो अपने खून को बहाए, वो अपना कफारा दे, वो छुटकारे के लिए सलीब पर अपनी जान को दे, हमारे गुनाहों की खातिर वो अपने खून को बहा दे ताकि हम निजात पाएं। ऐसा करना क्यों जरूरी था? मेरे साथ देखें रोमियो का खत, उसका 3 बाब और उसकी 23 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, किसी एक ने नहीं बल्कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए निजात का मंसूबा खुदा को तरतीब देना पड़ा, क्योंकि खुदा ने जब दुनिया को खलक किया तो खुदा ने बागे अदन में आदम को और हवा को बनाया और उसने आदम और हवा को वहां का मुख्तार बनाया। उसने कहा बढ़ो, फलो फूलो और दुनिया को मामूर करो, महकूम करो, यानी कि इस पर हुकूमत करो, इस पर इख्तियार रखो, सारे जानदारों पर तुम्हारा इख्तियार होगा, हर जानदार को मैं तुम्हारे इख्तियार में दूंगा और सब कुछ तुम्हारे ताबिया होगा। लेकिन वहां पर क्या होता है कि आदम और हवा जो हैं वो इब्लीस के हाथों गुमराह किए जाते हैं और वो खुदा के जलाल से महरूम हो जाते हैं। वो उस बड़े इख्तियार से जो उन्हें खुदावन ने दिया था, गुनाह के बायस वो उस निजात से, वो उस इख्तियार से, वो उस फजल से, वो उस जलाल से महरूम हो जाते हैं। और जिस तरह एक ने गुनाह किया और सारी जमीन उसके बायस लानती ठहरी, इसलिए सब जो थे वो भी गुनाह आलूदा फितरत में पैदा होना शुरू हुए और सब खुदावन के जलाल से महरूम हो गए। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा। खुदावन ने यह मंसूबा तरतीब दिया कि जिस तरह एक के गुनाह करने से सारी जमीन लानती हुई, इसी तरह यीशु मसीह के खून बहाने के वसीला से सब जो हैं निजात को पाएंगे। मेरे साथ एक हवाला देखें, रोमियो उसका 5 बाब, रोमियो उसका 5 बाब, उसकी 19 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के मखलसी, यीशु मसीह की फरमाबरदारी, यीशु मसीह के खून बहाने और यीशु मसीह के कफारा देने से, जिस तरह आदम के गुनाह करने से सारी जमीन लानती हुई, इसी तरह यीशु मसीह रास्तबाज के सलीब पर चढ़ाए जाने से हम सब मखलसी को पाते हैं, हम सब गुनाह से निजात को पाते हैं और हम उस गुनाह का अब हम पर कोई असर ना रहा, क्योंकि हम यीशु मसीह में जब निजात को पाते हैं हम नए हो जाते हैं, हम पर खुदावन का फजल हो जाता है और हम उसमें नए इंसान बन जाते हैं और हम अपने गुनाहों को यीशु मसीह के खून से जब धोते हैं तो हम सफेद किए जाते हैं, तब हम कबूल किए जाते हैं, तब हमें ये अश्योरेंस होती है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं और हम खुदा की उस मिरास का हिस्सा हैं। इसलिए हमें जाती तौर पर निजात के इस मंसूबे को, निजात के इस अमल को अपनी जिंदगी में लेना है। यह इस तौर से नहीं है कि अगर मेरा माँ या मेरा बाप निजात याफ्ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा भी निजात याफ्ता होगा, या ऐसा नहीं है कि अगर बेटे ने यीशु मसीह को कबूल किया
और वो उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मानता है, तो उसके वसीला से उसके माँ बाप या उसके बहन भाई निजात पाएंगे। बल्कि निजात आपको शख्सी तौर पर मिलती है जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं। आप अपने गुनाहों को उसकी सलीब पर मसलूब करते हैं और आप उसके खून को अपने गुनाहों के लिए मांगते हैं, ताकि उसका गुनाह जो बतेरों के गुनाहों के वास्ते बहाया गया है, जब आप उसे कबूल करते हैं तो आप निजात को हासिल करते हैं। तीसरी चीज हम देखेंगे कि निजात किस किस के लिए है। क्या निजात एक खास तबका के लिए है या निजात सबके लिए है? मेरे साथ हवाला देखिए, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। हालेलुया। खुदावंद ने सारी मखलूकात और सारी जो दुनिया है, खुदावंद ने उसके लिए अपनी जान दी। उसने हर एक जान के लिए, हर एक जिंदगी के लिए अपने खून को बहाया, ताकि उसका कफारा हर एक जिंदगी, हर एक रूह और हर एक जान के लिए दिया जाए। तो ये निजात का जो ये मंसूबा है, ये सारी अक़वाम के लिए है, ताकि सारी कौमें जो हैं वो खुदावंद के इस बड़े जलाल में शामिल हों और सारे उस निजात और उस कफारे का हिस्सा बने। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन जितने जो हैं यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो जिंदगी को पाते हैं, और वो कसरत की जिंदगी को पाते हैं। क्योंकि जिंदगी और कसरत की जिंदगी जो है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह के बगैर कोई ऐसी चीज नहीं बख्शी गई, कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिस नाम में बरकत है, जिस नाम में कुव्वत है, जिस नाम में मखलसी है, जिस नाम में छुटकारा है। बल्कि सिर्फ यीशु नाम बख्शा गया है, जिस नाम में कुदरत है, जिस नाम में इज्जत है, जिस नाम में हमारी रिहाई है। चौथी चीज जो हम देखेंगे वो ये कि हम निजात को कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ आप हवाला देखें, रोमियो उसका 10 बाब, रोमियो उसका 10 बाब और उसकी 9 और 10 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो तू निजात पाएगा। क्योंकि रासबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आमीन। तो निजात को हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जुबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करें, और जो जान यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करती है वो निजात पाएंगे। जो अपने मुंह से इकरार करेंगे, जो अपने मुंह से यीशु मसीह को कबूल करेंगे, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानेंगे, जो शख्स इस चीज का ईमान रखता है कि यीशु मसीह मेरी मखलसी है, यीशु मसीह मेरा मसीहा है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा बचाने वाला है, और उसी के वसीला से मैं निजात को पाऊंगा, तो वो जुबान जब इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है, यीशु मसीह ही मेरी निजात है, तो वो जान निजात को पाएगी। हम कभी भी निजात को इस तौर से नहीं पा सकते कि हम इसको जनरेशनली नहीं पाते, बल्कि हम इसे शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं जब हम शख्सी तौर पर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए जरूरी है कि आप यीशु मसीह पर ईमान लाएं और यीशु मसीह के मुंह की बातों पर ईमान रखें, और उसकी मखलसी को, उसके सलीब पर चढ़ाए जाने को आप कबूल करें, तो आप निजात पाएंगे। कई दफा हम सोचते हैं कि अगर हम बहुत अच्छे काम करते हैं तो शायद हम निजात याफ्ता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई दफा हम सोचते हैं कि हम चर्च जाते हैं तो हम शायद निजात याफ्ता हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हम निजात को, हमने देखा कि हम निजात को उसी वक्त पाते हैं
जब हम अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करते हैं और अपने दिल से ईमान लाते हैं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो हम निजात को अपनी जिंदगी में पाते हैं। हम निजात को जब अपनी जिंदगी में पाते हैं तो फिर गुनाह का हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं रहता, बल्कि हम गुनाह से और गुनाह की उस सजा से आजाद किए जाते हैं। गुनाह की जो लानत है वो हम पर मजीद अब काम नहीं करती, बल्कि हम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में नए हो जाते हैं। हम उसकी निजात के वसीला से रास्तबाजी को पहन लेते हैं। यीशु मसीह के खून बहाने से जब वो खून हमारे बदनों पर आता है तो हमारी गंदगियां और हमारी नापाकी जो है वो धुल जाती है और हम यीशु मसीह के वसीला से पाक किए जाते हैं। हम उसकी रास्तबाजी को पहनकर हम रास्तबाज कहलाते हैं और हम यीशु मसीह में नई मखलूक बन जाते हैं। मेरे साथ देखें रोमियो 8 बाब उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान रखता है और जो निजात को हासिल करता है, उसके बारे में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। मेरे अजीजों, मेरे और आप पर अब सजा का हुक्म नहीं रहा, क्योंकि हमने यीशु मसीह को कबूल किया है, हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लिया है और यीशु मसीह अब हमारी रास्तबाजी है। अब गुनाह की लानत जो है उसका कोई असर हम पर नहीं रहा, बल्कि अब हम यीशु मसीह में नए हो गए हैं। अब यीशु मसीह में हमें नया किया गया है। अब यीशु मसीह में हम नई मखलूक बन गए हैं और वो जो गुनाह थे, जब हमने उनका इनकार किया और हमने यीशु मसीह की उस निजात का, उस बड़े मंसूबा को जो हमने अपनी जिंदगी में लिया, जो खुदा बाप ने तरतीब दिया ताकि वो इख्तियार, वो फजल, वो जलाल जो जमीन के इब्तदा में इंसान को बख्शा गया था, वो यीशु मसीह की बदौलत, उसके खून की बदौलत खुदा ने बहाली हमारी जिंदगी में लाई। खुदावन ने हमें फिर से वो इख्तियार दिया, खुदावन ने फिर से हमें अपने जलाल में शामिल किया, क्योंकि लिखा है कि गुनाह के बायस सब उसके जलाल से महरूम हो गए। लेकिन जब हम मसीह यीशु में दोबारा से इस मिरास का हिस्सा पाएंगे, जब हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे, तो फिर हम उसके तख्त के सामने भी लाए जाएंगे। तब हम खुदा के सामने खड़े भी रहेंगे और इसी सबब से वो कहता है कि वो हमें बेटे और बेटियां कहता है। इसी से हमें लेपालिक होने का शर्फ और हक हासिल होता है कि हम खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां हैं। अब हम पर सजा का कोई हुक्म नहीं रहा। एक और हवाला मेरे साथ देखें, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 36 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 36 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वही हमारे गुनाहों का छुटकारा है, वो हमारे लिए आया और वो सलीब पर चढ़ाया गया और जो गुनाह मेरे और आपके थे वो उस पर लाद दिए गए, जो सजा मेरी और आपकी थी वो उस पर डाल दी गई, जो सजा मेरी और आपकी थी वो उसने अपने ऊपर ले ली और उसने अपने खून को बहाकर, उसने उस सारी तकलीफ को लेकर उसने मुझे और आपको रिहाई बख्शी। जब हम उसके इस फजल को, जब हम उसके इस रहम को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, तो हम कसरत की जिंदगी को पाते हैं, बल्कि हम उस मंसूबा में शामिल हो जाते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखा था। हम अबदी जिंदगी को पाते हैं, हम हमेशा की जिंदगी को पाते हैं, हम कसरत की जिंदगी को पाते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हम निजात याफ्ता होते हैं, जब हम हकीकी निजात को अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं, जब यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, जब यीशु मसीह हमारे अंदर बसना शुरू करता है,
तो फिर हमें ये अश्योरेंस होती है कि हम हमेशा की जिंदगी को पाएंगे, हम अब्दी जिंदगी को पाएंगे, हम जिंदगी पाएंगे और कसरत की जिंदगी को पाएंगे, क्योंकि वो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। इसलिए आज हम यीशु मसीह को अपना राह बनाएंगे और हम हक पर आएंगे और हम जिंदगी को हासिल करेंगे और कसरत की जिंदगी को हासिल करेंगे और अब्दी जिंदगी को हासिल करेंगे और उस ताज को हासिल करेंगे जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूं और सबके अमाल के मुआफिक मेरे पास अजर देने को है। इसलिए हमें आज जरूरत है कि हम अपने आप को देखें कि हमारी जिंदगियां कहां पर खड़ी हैं। क्या हम हकीकी गॉस्पल को अपनी जिंदगी में ले रहे हैं? क्या हम बाइबल को अपनी जिंदगी में पूरे तौर से ले रहे हैं? क्या हमने अपनी जिंदगियों का इख्तियार यीशु मसीह को दिया हुआ है, या हमारी जिंदगियां अबलीस के कामों के मुताबिक चल रही हैं? क्या हम अपनी जिंदगी को झूठी रास्तबाजी में गुजार रहे हैं, या हम अपनी जिंदगी को हकीकी रास्तबाजी में, हकीकी नजात में और हकीकी पाकीज़गी में गुजार रहे हैं या नहीं? तो ये जरूरत है कि हम खुदा के कलाम में से पढ़ें, हम खुदा के कलाम में से सीखें कि हमारी जिंदगी कहाँ है, और हम इस खुदा की कलाम को अपनी जिंदगियों में लें, ताकि ये कलाम हमारी जिंदगियों में जगह ले, ये कलाम हमारी जिंदगियों में असर रखे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज को सुने और दरवाजा को खोले तो मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा। मेरे अजीजों, यहां पर एक और तलब बात यह है कि जब वो दरवाजा पर खड़ा खटखटाता है तो इसका मतलब है कि दरवाजा अंदर से बंद है, और अगर आप दरवाजा को अंदर से खोलेंगे तो यीशु मसीह अंदर आएगा, और जब यीशु मसीह अंदर आएगा तो वो आपके दिल में बैठे उस अबलीस को, जिसने आपके दिल पर कब्जा किया हुआ है, जिसने आपकी जिंदगी का इख्तियार लिया हुआ है और जो नहीं चाहता कि आप निजात को पाएं, फजल को पाएं, खुदावन के जलाल को पाएं, तो फिर यीशु मसीह आकर उस अबलीस को आपके दिल में से निकाल देगा और फिर वो आपके दिल को साफ कर देगा। वो आप में नए गोश्तीन दिल को डाल देगा, वो आपके अंदर असरन व मुस्तकीम रूह को डालेगा और वो आपको नई मखलूक बना देगा और आप जिंदगी पाएंगे। फिर वो आपको अब्दी जिंदगी का हक बख्शेगा, वो आपके नाम को किताबे हयात से हरगिज ना काटेगा, बल्कि वो आपके नाम को किताबे हयात में लिखेगा। फिर आपको दूसरी मौत से कुछ नुकसान हासिल ना होगा। इसलिए आज मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अगर आज आप खुदा पर ईमान तो रखते हैं, आप यीशु मसीह पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार नहीं करते, तो फिर आज आप इकरार करें कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, यीशु मसीह ही खुदावंद में से निकला है और वही अब्दुल अबाद सल्तनत करता है और जल्द आने वाला है और अदालत का सारा इख्तियार उसी को दिया गया है। और जो जान इकरार करेगी वही निजात को हासिल करेगी, और जब निजात आपकी जिंदगी में आएगी तो आप खुदा के पाक रूह को तोहफा में पाएंगे, और जब खुदा का पाक रूह आप में आएगा तो वो आप में सूरत पकड़ेगा और फिर वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, वो आपको गाइडेंस देगा, वो आपके लिए कलाम बन जाएगा जो आपके राह के लिए रोशनी होगा। तो आज खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम करें कि वो आए और आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करे। आज अपने दिल के दरवाजा को यीशु मसीह के लिए खोलें ताकि वो आए और आपके अंदर सफाई करे, आपको पाक करे और अपनी रास्तबाजी आपको दे। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।